which you to. We believe that the sector is at an inflection point, considering its size, scale of operations, importance to India, to our infrastructure, as well as to its impact on construction, on manufacturing, and multiple other areas. We are so glad to have you in the driving seat of this important sector. It gives me great pleasure to highlight to you that despite all the challenges faced in light of the coronavirus, the Ministry of Road and Transport has surpassed its target construction for national highways in the country. And during April to August this year, 3,181 kilometer NH length was constructed as against the target of 2,771. So we are extremely delighted to state this. We believe it's a significant statement, but let me also say that we are not surprised. Every time we speak to you, we hear your dynamism, your focus, your push. And so we're not surprised at this achievement, but on behalf of the whole industry, we thank you. In order to accelerate the pace of construction, a large number of initiatives have been taken to revive small projects, to stalled projects, to expedite the completion of new ones, and the initiatives on part of the government, including streamlining of land acquisition, acquisition of a major portion of the land prior to invitation of bids, securitization of road sector loans, revamping of dispute resolution mechanisms to avoid delays. Given this focus, initiative and this background, there is a huge focus on the construction industry opening up. And we believe that technology innovations, artificial intelligence, process innovation, use of superior materials and practices, employing of high standards and quality control, and most importantly, the establishing enhanced harmony between the public and the private sector will really redefine this sector. And we thank you once again for these initiatives. The series of innovations that we are beginning to see, and the two stalwarts who are in the FICCI's committee from L&T as well as from GMR, are very much aware and looking at methodologies to bring this to the country, whether it's computer modeling in road construction, intelligent network highways, dust suppression, porous pavement, noise reduction asphalt, plastic roads, wind-powered light for roads. All these are things which are in process and will make sure that India is clearly among the most advanced countries in this area. We need to identify and customize which of these new innovations which are being globally discussed will be brought to our country. I'd like to highlight many more of the initiatives of the government. Your 30,000 kilometers of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana being built using green technology. And this is indeed a tremendous aspect because waste material, coal mix technology are all being deployed to reduce the carbon footprint. In today's virtual conference on bitumen road construction, we will essentially focus on upcoming trends and technologies which have the potential to energize the sector. We aim to create an active platform for the transfer of and exchange of ideas, experiences, and best practices among policymakers and industry members. We're confident that this thought-provoking discussion will help push forward the sector and also assist in the entire revitalization of the economy, which is so critical. Once again, sir, your presence is an inspiration, and we thank you so much for the tremendous guidance to this sector. I acknowledge my colleagues and members of FICCI, as well as all other participants. A very, very warm welcome to all of you, and my best wishes for a very successful conference. Namaste. Thank you, Dr. Sangeeta Reddy, President FICCI, for the welcome address and also for setting the context. Now we are delighted to welcome Mr. BVN Rao, the Chairman FICCI Transport Infrastructure Committee and Business Chairman Transportation and Urban Infrastructure GMR Group for his context-setting address. Shri BVN Rao Garu. Thank you, Dilip. Shri Nitin Gadkari ji, none of us need any
more introduction. You are always inspiring, innovative, and we always, whenever we catch up with you, it is always, yeah, I should say, it is an idea session because you find always solutions, new ideas, and it is always pleasant to come to you, discuss with opportunities, discuss with challenges, and you are so update always. We being in the industry, still your sessions, your ideas is out of box. Um, Sangeeta, it is a very context setting was so good. Shailesh ji, my colleague, co-chairman, senior officials from the government, and distinguished speakers and delegates. Good morning to all. I think it is a nice to be assembled here in this pandemic time in a virtual conference. I think it is much more efficient way. Sometimes we are all looking. I have been informed that BitCon will be attended by key stakeholders of the sector, such as senior officials from the government, delegates from the private sector, from Indian and also from abroad, and several representatives from institutions, project developers, and contractors and consultants, among others. We have planned a well-versed program for the next 2 days. After commencing with the inaugural session, the program is spread out in 3 business sessions, which would be engaged in sustainable road infrastructure, emerging trends, opportunities in road construction, and also the cost-effective, innovative alternatives. I think this is one of the focus points because this industry is the lifeline for the economy. Always, when economy is in dwindling, I should say, it is not only slow in dwindling situation also. Our construction, especially road sector, highway sector, has been backbone for the economy's revival. And whatever we are talking today, whether it is Atmanirbhar or whether it is national infrastructure projects, pipeline, I think the major play is from our sector. So I feel that innovation, efficiency, cost reduction, and quick with environmental concern. I think these are all 5-6 challenges one would debate, deliberate, find innovative solutions. Ladies and gentlemen, you are aware Indian road infrastructure has seen consistent improvement for the last few years. Connectivity has improved. Road transportation become a focus for rapid development. With the GST regime, when logistics sector itself is transforming into a different model, I think the efficient way of construction, operation, and facility creation, that should be a focus. In the year 2019-20, consolidation of the gains, what we have accrued from the major policy decisions taken in the previous 5 years, a time for monitoring of ongoing projects, tackling the roadblocks, and adding to the already impressive pace of work achieved last year. It is my proud privilege to highlight that Ministry of Road Transport and Highways has completed all the ongoing projects that were awarded till 2015-16 and has placed the highest ever target of construction of at least 11,000 kilometers of national highways. And given this background, there is going to be high government spending in road construction as well as in maintenance, because we have built last 15 years large network. I think majority of them are coming for innovation, expansion, whether it is 4-lane to 6-lane, 6-lane to 8-lane, and expressways. Many states have been competing among themselves to create and also take part of the national highway program. The growing demand for infrastructure in the country will majorly drive the Indian bitumen market. It's a present context I would like to focus. Government projects such as Bharatmala, which is the brainchild of Nitinji, various national highway projects, and construction of various economic corridors, because the focus is going to the production to the customer. Always, earlier it is always available infrastructure. Now it is a creating infrastructure that is going to be there. In addition to these initiatives launched by the Government of India
for construction of roads in rural areas such as Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, we all know popularly PMGSY, and upgradation, maintenance, and repair work of existing rural roads. It is a great opportunity, huge opportunity, I should say. National highways, express highways are likely to push the demand for bitumen across the India. Bituminous roads laying is not considered environmental friendly due to the emissions. However, with the technological development, the bituminous pavement is becoming part of sustainable development. Bitumen is used as a common binder in the flexible pavements. The one major advantage of a flexible pavement is that their surface can be milled, recycled during repair and maintenance phase. Ministry of Transport is also promoting recycling of the pavement. In India for decades, hot mix asphalt with aggregate has been used as a pavement mixes for the initial laying as well as for recycling. However, with technological advancement and focus on sustainable development, usage of cold mix bituminous emulsion is picking up the pace around the world and India as well. Some of the major advantages of cold mix bitumen are energy savings, pollution-free environment, safer working for the labor at construction sites, and there is no requirement of high temperature while mixing and laying bitumen. Ladies and gentlemen, it is estimated that India generates around 15,000 tons of plastic every day, of which only about 9,000 tons is recycled. An innovative solution to combat the increasing plastic waste is to use it for building roads. Both plastic and conventionally used bitumen are petroleum products that bond well when added to molten asphalt, which makes the road more durable and sustainable. In 2015, the government of India made it mandatory for road developers to use waste plastic along with bituminous mixes for road construction within 50 kilometers radius of any city with a population of over 0.5 million. Major cities such as Delhi, Mumbai, Chennai, Pune, etc. have actively started using shredded plastic waste in road construction. Gadkariji, I am aware that this is a subject of great immense interest to you because always you boast on how new technologies can bring in. Yes, we have a system where pushing new ideas is a challenge because of sustainability. Similarly, it is estimated that more than 170 million tons of fly ash is generated in thermal power plants in the country. This is expected to go further as coal will continue to remain a major source of energy in the coming years. The use of fly ash in road projects for construction of embankments and stabilization of the subgrade and subbase not only facilitate the disposal of fly ash, but also provide significant benefits in terms of engineering and economic considerations. Currently, only 5% of the fly ash generated is used in the road sector. As per the guidelines issued by the Government of India, it is mandatory to use fly ash in the construction of roads and flyovers, embankments within radius of 300 kilometers of a thermal power plant. The other alternative materials that are gaining momentum in the construction sector are geosynthetics, which is a man-made polymer that is increasingly being used in construction of roads and highways, particularly in difficult terrains such as marshy stretches and soft deposits. In July 2018, MORTH has issued guidelines to further promote the use of geosynthetics more in all the road construction. Under the guidelines, state governments have been advised to include various types of geosynthetics in their schedule of rates so that the estimated cost of the project, including geosynthetics, can be worked out. Honorable Minister, the continuous focus of your ministry in the usage of alternative materials for construction of road is clearly evident from various initiatives taken past few years.
Here, I would also like to highlight that the ministry has implemented a value engineering program to promote new technologies and materials in highway projects. The main aim of the program is to use innovative technology, materials, and equipment to reduce the cost of project and also make them more environmental friendly in time-bounded program. The MORTH has also constituted national panel of experts for approving proposals under the program. Nitinji, I would like to appeal that in case of a new technology induced in between a contract, I think a sharing formula can be there. Whatever is cost reduced, sharing can be with government and the contractor. Such clause will always encourage for innovation, think differently out of this. I'm confident that today's intention will introduce all industry participants with emerging trends and opportunities in the road sector. It gives me a pleasure to extend a warm welcome to you all at the Bitucon virtual conference and exhibition of the bitumen road construction industry. I thank all the dignitaries for taking out time to join us. Sri Nitin Gadkari, I truly appreciate your presence today. Thank you, sir, for taking out time to be with us. Thank you, sir. Thank you, Shri BVN Rao, for setting the context and highlighting a lot of the government efforts that have been made in the past and how we could possibly position bitumen differently in the existing programs, also on your advice on recycling and looking at the value addition provision in the different contracts. Thank you very much for that address. It is now our pleasure, and as Mr. Rao said, we look forward to the Honorable Minister for his address. And may I now invite Shri Nitin Gadkari, Honorable Minister of Road Transport and Highways and Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India, to deliver the inaugural address for Bitucon 2020. Shri Gadkari ji. आदरणीय डॉक्टर संगीता रेड्डी, आदरणीय मिस्टर BVN राव, आदरणीय श्री शैलेश पाठक और सभी उपस्थित रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सम्माननीय अतिथिगण, सबसे पहले रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में आपने फिक्की की ओर से आज का यह कार्यक्रम रखा है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारी पॉलिसी यह है कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना, और लगातार ये प्रयास हम कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी सफलता मिली है। अभी हमने झोजिला टनल जो टेंडर किया था, इसकी कीमत 7,000, 6,500, 7,000 करोड़ से बढ़कर 11,000 करोड़ रुपए करने के लिए फाइल मेरे पास आई थी। मैंने फाइल टर्नआउट की और मैंने ये सुझाव दिया कि इसके बारे में हिंदुस्तान के सभी टनल कॉन्ट्रैक्टर्स, उनके साथ साथ कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर्स, इनके साथ हम एक वर्कशॉप करेंगे। और एसोसिएम के उसको स्पॉन्सर किया था, ओबेराय में हुआ था, और उसमें करीब 100-150 कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर उपस्थित थे और मैं खुद भी था। और मैंने उस समय हमारे डीजी को कहा था कि आप ये जो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन बनाते हो, इसमें बहुत बड़ी गलती है। जो व्यक्ति इरिगेशन के लिए टनल बना सकता है, वो रोड के लिए भी बना सकता है। तो मैंने खुद पहली बार बहुत ध्यान देकर नीचे तक हमने टेक्निकल क्वालिफिकेशंस और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशंस को बदल दिया। टेक्नोलॉजी को भी हमारे देश के अनुकूल होकर उसमें भी कुछ चेंजेस किए, क्योंकि ऊपर से जो शॉप डालना था उसकी काफ़ी कॉस्ट थी और वो टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में नहीं थी। ये जो झोजिला टनल थी, ये लद्दाख और लेह को ऑल सीजन जोड़ने वाली टनल है।
तो कारगिल से होती है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टनल थी। और ये जब सब कुछ हमने किया और 3 बार इसका टेंडर हो गया है और प्रधानमंत्री जी ने इसका भूमि पूजन करके अब कम से कम 2 साल हुए हैं और यहाँ केवल -8 डिग्री 7 डिग्री तक टेम्परेचर होता है, तो 4-6 महीने काम करना होता है। बहुत कठिनाई है। कारगिल की पहाड़ी में ये टनल बन रही है। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी हमने टेंडर भी रिसीव किया। 5 टेंडर पहली बार आए और लोएस्ट टेंडर जो है वो बिलो कॉस्ट आया और उसमें 5,200 करोड़ रुपए हमें कॉस्ट आई और करीब 4,000 साढ़े 4,000 करोड़ की बचत हमने की। और ये टेंडर अभी अवार्ड भी हुआ। तो ये टनल में पाठक साहब भी थे, एल&टी की भी कंपनी थी, पर वो लोएस्ट नहीं आई, दूसरी मेगा इंजीनियरिंग करके कंपनी लोएस्ट आई। वैसे हमने ब्रिजेस के बारे में भी काफ़ी टेक्निकल क्वालिफिकेशंस को रिड्यूस किया, डाइल्यूट किया। उसमें अभी एक गंगा के ऊपर का ब्रिज सिंगला करके कंपनी उनको मिली, अच्छा काम करते हैं वो 25% बिलो जाकर उन्होंने लिया। तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपके इंडस्ट्री के द्वारा सबको कहना है कि वी नीड टू रिड्यूस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट and we need to improve quality. Without compromise with the quality, we need to reduce cost of construction. अब ये करने के लिए कुछ हमारी दिक्कतें हैं और उसके बारे में अगर ये जो आज आपके कॉन्ट्रैक्टर सीरियसली नहीं लेंगे तो इनको आगे बिटुमेन के रोड के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वालिटी के बारे में उनको बहुत सोचना होगा। अभी हमारे यहाँ जैसे क्वालिटी को अच्छा करने के लिए बहुत अलग अलग प्रकार के प्रयास चल रहे हैं, पर उन प्रयासों में भी जितना प्रयास होने चाहिए उतने नहीं हुए। मैं खुद उसके ऊपर समाधान नहीं हूँ। पहली बात तो 8% प्लास्टिक और रबर यूज़ करना, ये हमने अनुमति दी है। 200-300 किलोमीटर हुआ है, पर इसका बड़े प्रमाण पर उपयोग नहीं हो रहा है। तो इन्वायरमेंट पॉइंट्स के दृष्टि से प्लास्टिक और रबर का यूज़ करना ये बिल्कुल आवश्यक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आयरन स्लैग है, जो जमशेदपुर में हमारे यहाँ JSW का प्लांट है, अलीबाग में, उधर अनेक जगह पर स्टील प्लांट में आयरन स्लैग पड़ी हुई है। और थोड़ा सा संगीता जी आपकी क्षमा मांगकर, आपके कलीग जो लोग होते हैं उनके स्वभाव का भी आप थोड़ा उनको भी कहिए। तो ये जो आयरन स्टील वाले मेरे पास आए थे, ये सब मुझे आकर पहले इन्होंने कहा कि ये हमारे पास पहाड़ों जैसा वेस्ट पड़ा हुआ है, हम फुकट में दे देंगे। और जब मैंने ऑर्डर निकाल कर यूज़ करना शुरू किया तो इन्होंने पैसे चार्ज करना शुरू किया, जबकि ये वेस्ट मटेरियल था। मिस्टर जोशी करके ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन कंसल्टेंट है, उनको बहुत बड़े पुरस्कार मिले और उन्हें आयरन स्लैग का उपयोग करके एयर स्ट्रिप भी बनाई है और जमशेदपुर में भी रोड भी बनाया हुआ है। तो आयरन स्लैग का उपयोग करने से बिटुमेन रोड में मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी उसकी और बेटर बन सकती है। फ्लैश के उपयोग के बारे में काफ़ी जानकारियाँ मेरे पास है। अब फ्लैश के बारे में भी हमने काफ़ी बड़े प्रमाण पर फ्लैश यूज़ की है और ये फ्लैश का कम से कम अभी 80 लाख मेट्रिक टन ऑफ फ्लैश है ऑलरेडी बीन यूज फॉर NHI प्रोजेक्ट्स। तो ये भी, इसका यूज़ भी बड़े प्रमाण पर हो सकता है। अब इसमें क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला था कि जो जो थर्मल पावर प्लांट की फ्लैश यूज़ करेंगे उनको ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट जो है वो पावर स्टेशन देगा, जबकि अब फ्लैश के लिए झगड़े होने लगे हैं, क्योंकि फ्लैश को अभी आसानी से मिलने रही, क्योंकि यूज़ ज़्यादा हो गया और फ्लैश ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो सकती है, इसका काफ़ी उपयोग हो रहा है, अच्छी बात है। तो स्वाभाविक रूप से ये इसमें थोड़े से विवाद होते रहते, फिर भी फ्लैश का यूज़ साधारणतः थर्मल पावर प्लांट के 60-70 किलोमीटर के नज़दीक क्षेत्र में बड़े प्रमाण पर हो रहा है। दूसरी बात जो है कि इस बार बरसात में बड़े प्रमाण पर जो बिटुमेन रोड हमने बनाए थे वो खराब हो गए।
मैं ये कार्यक्रम में आने के पहले थोड़ा सोच रहा था कि भाई ये टाल सकता हूँ क्या, क्योंकि मैं साफ बोलने वाला हूँ और आपने मुझे कार्यक्रम में बुलाया और मैं आपके ही अगेंस्ट बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा आपको भी और मुझे भी, तो मैं थोड़ा संकोच कर रहा था। अब स्थिति ऐसी हुई कि इस बार की बरसात में जहाँ जहाँ बिटुमिन रोड बना है ये बहुत जगह खराब हो गए, और हमारे देश में पहले से एक विवाद चल रहा है कि बिटुमिन रोड बनाना कि सीमेंट कंक्रीट बनाना। तो ये बिटुमिन वाले जो आज बचे हुए इसका क्रेडिट जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री को है, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री वालों को मैंने रोड NHAI के लगभग सीमेंट रोड कंक्रीट रोड मैंडेटरी करने का निर्णय भी किया, इम्प्लीमेंट भी कर दिया था। पर ये सीमेंट इंडस्ट्री वाले जो है इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये कार्टेल करते हैं और ब्लैक मार्केट करते हैं, और इनकी जो आदत है इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने इनको फाइन भी किया हुआ है। ये आपके फीके में आते तो इनको समझाओ। परसों एक बड़े इंडस्ट्री वाले मेरे पास आए थे, तो मैंने उनको कहा कि मैं 1 लाख करोड़ का सीमेंट साल भर में आपका परचेस करूंगा, 25,000 30,000 करोड़ का रेडीमिक्स कंक्रीट ले लूंगा, और आप अगर तैयार है तो आप ही इनिशिएटिव लो और डिजाइन्स के बारे में प्री कास्ट के डिजाइन स्टैंडर्डाइज कर दो। मैं आपकी वहां फैक्ट्री डाल दो, रेडीमिक्स भी आप बनाओ, प्री कास्ट भी आप बनाओ और रोड को सप्लाई करो। मैं पूरी तरह अलाउ कर देता हूँ, इससे पोल्यूशन भी नहीं होगा, कॉस्ट भी कम होगी। पर आपको मुझे सीमेंट का रेट कोट करना पड़ेगा, और जो कॉन्ट्रैक्टर लेते उससे काफ़ी सस्ता होके उस रेट को आप कमिट करके मुझे अगर रेट कॉन्ट्रैक्ट पे देते होगे तो मैं दूंगा। अगर आप आदत से मजबूर हो कि आपको ब्लैक मार्केट करने की आदत है, आई एम यूजिंग डेलिबरेटली विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ल्ड ब्लैक मार्केट। तो ये लोग कार्टेल करके कितना प्रोडक्शन करके जो ब्लैक मार्केट करते हैं, इसके कारण मेरा उनके ऊपर इतना गुस्सा था। उसका फायदा ये बिटुमिन वालों को मिला, और मैंने वो कंक्रीट करने वाला जो मेरा आग्रह था वो डाइल्यूट किया, क्योंकि उनकी आदत के कारण, और इसके कारण ये बिटुमिन रोड कुछ बन रहा है। अनुभव ये है कि बिटुमिन रोड 5 साल के ऊपर जो है उसमें नहीं टिक रहे हैं, और जहाँ ज़्यादा बरसात होती वहाँ उखड़ जा रहे हैं। तो मैं ये सब तज्ञ लोगों को कहूँगा कि आप मुझे 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड देकर आप बिटुमिन रोड बनाने की चैलेंज को स्वीकारने के लिए तैयार हो क्या? और इसके लिए इनको अपनी टेक्नोलॉजी में काफ़ी बदलना होगा। बिटुमिन जो यूज़ करना होगा उसका भी कौन सा ग्रेड का है ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके नीचे में जो बेस तैयार होंगे वो कैसे होंगे ये भी उतना इम्पोर्टेंट है। ये वर्ल्ड की बेस्ट के बेस्ट टेक्नोलॉजी लाए। राव साहब जिसकी बात कर रहे थे कि सेविंग अगर होता है तो 50% सरकार का, आप मुझे सेविंग नहीं चाहिए। मैं ऐसी पॉलिसी बना देता हूँ, सेविंग पूरा आपका होगा। आप दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी लाओ और आप टेंडर भरो और 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी लो। एक बैंक गारंटी मैं लूँगा, उसमें भी थोड़ा कम पैसे की, और उसके आधार पर आप वर्ल्ड की कोई भी टेक्नोलॉजी लाओ, मैं आपको अलाउ करूँगा। अभी हमारे NHAI के चेयरमैन और सेक्रेटरी दोनों काफ़ी ठीक है। हमने कोविड के पीरियड में भी 30 मीटर का रेट मेंटेन किया है और अवार्ड स्पीडीली अवार्ड कर रहे हैं। हमारी स्पीड कोविड में कम होने के बजाय बढ़ी है। तो मार्च एंड में मैं 30 किलोमीटर से ज़्यादा ही रोड कंस्ट्रक्शन करूंगा इस साल में भी, और अवार्ड भी करूंगा। तो मेरा आपसे सुझाव है कि अवार्ड करने के लिए मेरे पास कमी नहीं है, और पैसे की कमी है ना रोड की कमी है। आपको बिजनेस करना होगा तो आपका जो अभी तक चल रहा है काम कि एक बिटुमिन रोड बना दो और एक बार 2 साल 3 साल के बाद बाजू हट जाओ, फिर उससे गड्ढे पड़ते रहे और लोग गड्ढे में फंसते रहे, ये काम नहीं चलेगा। अगर आप 5 साल की मेंटेनेंस की गारंटी लेकर, डिफेक्ट लायबिलिटी की गारंटी लेकर, बाय यूजिंग एनी टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल इन द वर्ल्ड, तो मैं आपको अलाउ करने के लिए तैयार हूँ। मेरा खुद, मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, पर मेरा एक अनुमान है कि आपने अगर स्लैग को यूज़ किया और उसके बाद आपके एग्रीगेट के लिए भी अभी एक नया फार्मूला मैंने किया है। महाराष्ट्र में हमने, जहाँ किसान आत्महत्या करते थे, वहाँ काफ़ी जगह महाराष्ट्र में मैंने काफ़ी काम किया।
तो रोड बनाते समय जो नदियां हैं और नाले हैं उनका हम खोलीकरण और रुंदीकरण करते हैं और फ्री ऑफ चार्ज NHAI के कॉन्ट्रैक्टर वो करते हैं और वो पूरी मिट्टी एग्रीगेट करके उपयोग में लाते हैं। इससे महाराष्ट्र में खूब वाटर बॉडीज तैयार हुई। एक बुल्ढाना जिला है, वहाँ बुल्ढाना पैटर्न करके एक प्रोजेक्ट अभी किया है। वो पूरे पैटर्न को नीति आयोग ने अब स्वीकार किया है और पूरे देश को लागू करने का निर्णय किया है। ऑलरेडी उन्होंने ऑर्डर इशू किए हैं। इसमें ऐसा होता है कि वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती है और दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। दैट इज द कंसेप्ट। अब इसमें काफ़ी बड़ा काम महाराष्ट्र में हुआ है और अभी हो रहा है। ये आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक में होगा तो वाटर प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अभी ये जो बुल्ढाना जिले में हुआ है इसकी फिल्म आप जरूर देखना, अवेलेबल है। हमने 288 गांवों का पीने का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। 30,000 कुएं रिचार्ज हो गए और 10,000 हेक्टेयर जमीन पानी के इरिगेशन के नीचे आई। तो मेरा आपसे सुझाव है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज न करते हुए कम करने वाला फॉर्मूला आप दो। आप प्रीकास्ट की फैक्ट्री डालो, पैटर्न डिजाइन्स तैयार करो, आप खुद वहाँ फैक्ट्री में काम करो, आओ। आपका जो आप काम आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का उपयोग करके आप फैक्ट्री में कर सकते हो, आप करिए। जो इक्विपमेंट चाहिए वो यूज़ करिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो लाइए। जैसे अभी मैं आपको अनुरोध करूँगा कि हमने मलेशिया से एक टेक्नोलॉजी आई, उसको हमने अप्रूवल दिया है कि स्टील के बजाय स्टील फाइबर को हम यूज़ करेंगे। तो जो दो पिलर के बीच में जो डिस्टेंस है, अब 100 मीटर तक बीच में पिलर खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह सक्सेसफुल महाराष्ट्र में हुआ। रवि सिन्हा करके IIT के जो इंचार्ज है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मुंबई के, उनकी अध्यक्षता में एक टीम मैंने मलेशिया भेजी थी। उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दिया और हमने उसको स्वीकार किया है। ये एक चीज़ करने से हम साल के 20 से 25,000 करोड़ केवल ब्रिज कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट को कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत ऐसे इनिशिएटिव है और जो इनिशिएटिव को लेकर आप क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करके कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को आप कम कर सकते हो। बिटुमिन के जो रोड कॉन्ट्रैक्टर है वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और इसका कारण आपका अभी तक काम जमा, पर अब वो क्वालिटी के साथ 2-4 साल में बनाने के बाद गड्ढे पड़ जाते हैं। अब यही काम करते रहना कि हर साल रोड बनाना, हर साल गड्ढे पड़ना, फिर नया मेंटेनेंस का काम, फिर नया पैसा, ठेकेदार भी खुश, नेता भी खुश और जनता चिल्लाती रहे। यही धंधा अब गांव से लेकर बड़े तक होता है, रोड टिकते नहीं। अब मुंबई देखो, मुंबई का कारपोरेशन कंक्रीट के रोड कम बना, हर साल गड्ढे पड़ते हैं, हर बार टीवी में बरसात के दिनों में चालू रहता है। और मैंने मुंबई पुणे हाईवे बनाया, वो कंक्रीट का, उसके ऊपर एक भी गड्ढा नहीं पड़ा। तो सबसे आइडियल स्टेज अगर कोई है तो कंक्रीट रोड विथ बिटुमिन सरफेसिंग, वो अगर आपने किया तो राइडिंग क्वालिटी भी अच्छी आती है। तो आप कंक्रीट रोड की तुलना में ये सॉल्यूशन निकालकर आप अगर करेंगे तो मैं 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के आधार पर करेंगे तो मैं कुछ उसमें आपके जो कंडीशंस हैं वो बदलने के लिए भी तैयार हूँ और आप बिटुमिन का यूज़ जरूर करिए। पर अगर 5 साल में रोड उखाड़ कर जाएंगे तो आने वाले समय में मैं बिटुमिन रोड को इनकरेज करना नहीं चाहता, पर ये आज तक इनकरेज किया क्योंकि ये सीमेंट वाले कार्टेल करते थे, उनको मदद करने की मेरी भावना नहीं थी, इसलिए अभी तक मैं चुप बैठा हूँ और ये बिटुमिन का चलने दे रहा हूँ। थोड़ा बहुत उसमें हो रहा, थोड़ा कंक्रीट, थोड़ा बिटुमिन। पर ये जो समस्या है इसका समाधान आपको देना पड़ेगा। मैं तो ये मानता हूँ कि आप धीरे धीरे ऐसे कोई डिज़ाइंस को तैयार कर सकते हैं कि नीचे में जो बेस आप बना रहे हैं उसको आप, ये मेरी आइडिया है, आई एम नॉट ए इंजीनियर, तो 6 इंच कंक्रीट होगा, फिर उसका आप उसके बाद स्लैग या कोई ऐसा मटेरियल रखिए, फिर उसके ऊपर आप बिटुमिन रखिए और ये इसको 25 साल, 40 साल, 50 साल कोई गड्ढा नहीं पड़ेगा, अच्छे रोड बनेंगे। आप इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देंगे तो मुझे क्या बिटुमिन से नाराजी और सीमेंट से प्रेम है, ऐसा नहीं है। जब तक हिंदुस्तान की रिफाइनरी बिटुमिन दे रही है तो अच्छा ही है, तो आपको इनकरेज करने में अड़चन नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें रिसर्च की आवश्यकता है
अलग अलग मॉडल तैयार करके आप करेंगे तो इसमें रोड बनेंगे। और ये काम थोड़ा सा वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है उनका उपयोग करके आपने करना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मिनिमम 10 साल का डिफेक्ट लायबिलिटी का क्लॉज डालकर अगर आप बिटुमिन रोड बनाएंगे और उसमें नीचे में थोड़ा सरफेस उसका आवश्यक हो तो वो हार्ड कौन सा करना आप देखिए। पर उसके साथ अलग अलग प्रकार के डिज़ाइंस में आप अगर काम करके कुछ नए इनोवेशंस लाएंगे तो मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। और इसमें अगर आप कॉस्ट आप बचाते हैं तो मैं वो बेनिफिट कॉन्ट्रैक्टर को देना चाहता हूँ। आजकल सॉइल स्टेबलाइज करने के बारे में भी नई नई टेक्निक आई है। तो क्या ये हो सकता है कि कंक्रीट के बजाय नीचे वाला बेस सॉइल स्टेबलाइज करके उसके साथ अच्छा मजबूत बनाकर फिर उसके साथ बिटुमिन रोड बनाकर आप 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड ले सकते क्या? तो मुझे लगता है कि ये अलग अलग प्रकार की ऑप्शंस है, आप जरूर सोचो, मेरे पास आओ और 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के लिए आप तैयार हो तो मैं उसके लिए एकदम तैयार हूँ। और ये क्वालिटी जो है ये देश के हित की होगी, जनता के भी हित में होगी और मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा होगा। अभी कोकण में और एक बात का निर्णय हमने किया है, यहाँ भी अलग अलग प्रकार की लॉबीज है, कोई बिटुमिन वाली लॉबी है, कोई सीमेंट वाली लॉबी है, स्टील वाली लॉबी है। अभी ये जो स्टेनलेस स्टील है तो ये जो वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट जब बनाया तब मैं मंत्री था, तब हमने स्टील को पाउडर कोटिंग किया था ताकि उसको रस्टिंग ना लगे। पर अभी परसों ही मैंने डीजी को ऑर्डर दिया है कि समुद्र से जो सी एरिया है वहाँ से 30, 40, 50 किलोमीटर कोई डिस्टेंस रखा हुआ है, वहाँ अगर ब्रिज बनेंगे तो स्टेनलेस स्टील ही यूज़ किया जाएगा जिसके ऊपर रस्ट नहीं लगता। तो इससे क्या होगा, ब्रिज का लाइफ बढ़ेगा। तो ये भी हम कर रहे हैं ताकि उसकी 10% कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि स्टील और स्टेनलेस स्टील में फर्क है, फिर भी हम इसलिए ले रहे हैं कि आगे चलकर उसमें कोई रस्टिंग का प्रॉब्लम ना है, लाइफ लॉन्ग ये ब्रिजेस बने। अदरवाइज आपने देखा होगा कि समुद्र जहाँ आता है वहाँ जो ब्रिजेस बने हैं बहुत जल्दी रस्टिंग हो जाता है और फिर ब्रिजेस खराब हो जाते हैं। तो ये भी बात हम लोग सोच रहे हैं। आने वाले समय में हमने काफ़ी नए नए इनिशिएटिव लिए हैं और आप लोगों को मैं कहूँगा कि सरकार से ज़्यादा आप लो और सेविंग आप करो, टेक्नोलॉजी लाओ और आपको कई अनुमति आप टेंडर भरो कॉस्ट में और डिफेक्ट लायबिलिटी का आप अगर 10 साल की या हमारी 5 साल की है, 5 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी देकर आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो हमें पता नहीं, पर गड़बड़ होगी तो आपसे हम लोग 5 साल में खराब होगी तो आपकी जिम्मेदारी होगी, आपको सुधारना होगा या हम आपकी बैंक गारंटी जब्त करेंगे और रिस्क आपको लेनी पड़ेगी, फ़ायदा नुकसान आपका होगा। पर इसीलिए आप अगर यही 5 साल का पीरियड मैं 10 साल का करने में कंफर्टेबल हूँ और अगर ये 10 साल का मैंने करके अगर आप मुझे अच्छी क्वालिटी देते हैं तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम फॉर बिटुमिन रोड्स। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में ये LNT के पाठक साहब बैठे हैं तो ये ऐसी कंपनियां मिलकर कुछ रिसर्च करें, वर्ल्ड के अच्छे अच्छे कंसल्टेंट लाएं और आप कोट करें। अभी 5 साल का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है, अभी 10 साल नहीं है, पर मेरा माइंड ये चल रहा है कि इसको 10 साल का करना है और मेंटेन की जिम्मेदारी 10 साल की उसी कॉन्ट्रैक्टर को देना है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के डिज़ाइंस तैयार करने में अगर आप इनिशिएटिव लेकर वर्ल्ड का आप कोई कंसल्टेंट लेके आइए, आप करिए, सेविंग वगैरह आपका होगा, सेविंग का पैसा हमको नहीं होना। वी वांट टू इनकरेज कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर गुड क्वालिटी, गुड इनिशिएटिव एंड फॉर गुड कंस्ट्रक्शन। तो फ़ायदा आप लोग एक ने लिया, 2 ने लिया, फिर 10 लोग वही करेंगे तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी पॉपुलर होगी। तो वी डोंट हैव एनी रिजर्वेशन फॉर दैट। तो मुझे लगता है कि इसमें रिसर्च करके आप आगे आइए, ये होगा। मेरी फिर से आपको रिक्वेस्ट है कि अभी इसमें और 2 बातें हैं, जैसे मैंने आपको कहा कंक्रीट बेस या अपना आयरन स्लैग को यूज़ करना, स्टील स्लैग को यूज़ करना उसका बेस, वैसे एक हमारे देश की आवश्यकता है। और मैं MSME का भी मंत्री हूँ और रोड का भी मंत्री हूँ। अभी हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना में ये मैंडेटरी शायद किया है और ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मेरे हार्ट से जुड़ी हुई है क्योंकि ये योजना मैंने बनाई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो मेरे अध्यक्षता में उन्होंने कमेटी बनाई थी और ये
ये फ्लैगशिप योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला था, तब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था। तो अभी उनको मैंने ये अभी हमने एक निर्णय ऐसा उन्होंने किया है कि रोड बनाते समय ये जियो फैब्रिक्स जो है, जियो टेक्सटाइल, ये हम यूज़ कर रहे हैं। अब ये जियो टेक्सटाइल जो है बड़ा काफ़ी इम्पोर्टेड भी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जूट या कॉयर, हमारी केरल तमिलनाडु में बड़े प्रमाण पर कॉयर की इंडस्ट्री है, बंगाल में आसाम में जूट है, तो क्या हम लोग जूट या कॉयर का जो क्लॉथ बनाकर वो रोड के नीचे डालकर हम रोड की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं क्या? तो ये IIT शायद चेन्नई ने प्रयोग किया है हमारे कॉयर बोर्ड के कहने पर, और उन्होंने ये सिद्ध करके दिया है कि अगर हम लोग कॉयर बोर्ड अगर रखते हैं तो रोड की क्वालिटी लाइफ और बढ़ता है। तो इंडिजिनस मटेरियल जो यहाँ के स्थानिक लोगों को मदद करेगा, कॉयर है, जूट है, वो अगर आप उसका फैब्रिक अगर आप बड़े प्रमाण पर यूज़ करते हैं तो ये भी मेरे लिए विशेष आनंद का होगा। मैं तुरंत उसको सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। तो ये जो सिंथेटिक फैब्रिक के बजाय कॉयर को या जूट को, उसके फैब्रिक को यूज़ करना, ऑयल स्लैग जो है उसको यूज़ करना, जो वेस्ट मटेरियल है वो लगभग स्टील ही है, इतनी उसकी क्वालिटी मजबूत है। फिर उसके साथ साथ प्लास्टिक एंड रबर एज ए वेस्ट मटेरियल 8% तक उसका यूज़ करना, और उसके साथ साथ तो फ्लैश का उपयोग हम कर ही रहे हैं। और प्री कास्ट के लिए हम लोग डिज़ाइंस जो है वो पैटर्न डिज़ाइन सिस्टम लेके आए, और प्री कास्ट में हम लोग ये स्टील फाइबर यूज़ करें। तो अलग अलग प्रकार की इनिशिएटिव, और अभी तो हम लोग बद्रीनाथ केदारनाथ के रोड बना रहे, लैंडस्लाइड्स हो रही है, हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, बहुत अड़चनें आ रही है। तो आप इसके बारे में भी अलग अलग प्रकार की आवश्यकताएं IITs काम कर रही है। मैं आपको रोड कॉन्ट्रैक्टर सबको यह आह्वान करता हूं कि आप इस सरकारी सिस्टम को भूल जाओ, आप वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी कंसल्टेंट के साथ मिलकर और डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड की गारंटी लेकर अगर आप आते हो तो मैं आपको चाहे वो टेक्नोलॉजी यूज़ करने का अधिकार दूंगा, आपकी बैंक गारंटी जरूर रखूंगा, 10 साल की गारंटी लूंगा, और गड़बड़ होगी तो बैंक गारंटी जब्त करूंगा। पर वो रिस्क आपको लेना है, आपका जितना सेविंग है उतना करके अगर आप करना चाहते हो तो मेरे पास आइए, मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। आई एम नॉट कंसर्न कि आपको कितना बचत होती है, दैट इज़ योर मैनेजरियल स्किल, टेक्निकल स्किल, और जो सेविंग से आप आपका प्रॉफिट बढ़ाते हो विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बिल्कुल मदद करूँगा। हमारे सेक्रेटरी भी बहुत ही अच्छे विचारों के, फास्ट है, निर्णय करने वाले, मिस्टर गिरिधर करके, और NHI चेयरमैन संधू करके, वो दोनों अच्छे हैं। हम ओपन माइंडेड है, ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्वालिटी से कमिटेड है और करप्शन फ्री है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप आइए, हमें कन्विंस करिए, हम आपको अनुमति देने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि ये बात अगर होगी, आप अगर ये क्वालिटी में इम्प्रूव करोगे तो ग्राम पंचायत से लेकर डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट हाईवे, बाद में नेशनल हाईवे, सब जगह पर बिटुमेन रोड का परसेंटेज बढ़ेगा। और ये निश्चित रूप से इसको इनकरेज करना है, पर हमारा प्रेम मटेरियल से नहीं है, क्वालिटी से है। कॉस्ट के बारे में कंपटीशन में जो अच्छी देगा उसके साथ हमें काम करना है। तो मुझे लगता है कि हमारी पॉलिसी को समझते हुए आप आपके रोड कंस्ट्रक्शन की बिटुमेन टेक्नोलॉजी में जल्दी जल्दी बदल करिए, नए नए फार्मूला लेके आइए, अन्यथा समय के साथ अगले सेमिनार में आपको मैं बुलाएंगे तो भी मैं आऊँगा नहीं, क्योंकि यही बुरी बातें आपको कहने में अच्छा नहीं लगेगा। नहीं तो ये अगर सुधारोगे नहीं तो मैं बिटुमेन को बंद कर दूंगा और कंक्रीट को मैंडेटरी कर दूंगा, एक बूंद भर बिटुमेन नहीं यूज़ करूंगा। तो फिर आप बोलोगे तो ये तो उल्टा हो गया। तो मैं नहीं चाहता कि उसके पहले आप क्वालिटी और इसमें काफ़ी रिसर्च करके इसको इम्प्रूवमेंट करके अच्छे डिज़ाइंस को लेकर आइए। निश्चित रूप से हम आपको सहयोग भी करेंगे और मदद भी करेंगे। मैं फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थोड़ी मेरी आदत खराब है कि आपने ही मुझे कार्यक्रम में बुलाया और मैं बिटुमेन के अगेंस्ट कुछ बातें कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा मुझे। पर मेरा DNA ऐसा है कि मेरे दिल से झूठ बात नहीं निकल पाती। जो मुझे आप, यू आर फ्री टू कन्विंस मी, आई एम नॉट फिक्स ऑन माई आइडियाज़। मेरे विचार बदल सकते हैं,
आप मुझे उसके बारे में आपकी बातों को मुझे अगर कन्विंस कर सके तो। फिलहाल मैं इंक्लाइन टू कंक्रीट रोड हूँ, बिटुमेन के अगेंस्ट हूँ, पर ये सीमेंट इंडस्ट्री की कार्टेल करने की जो आदत है, इसके कारण ही ये आपके नसीब में अच्छी बात हुई कि इनकी आदत के कारण मैंने बिटुमेन होने दे रहा हूँ और मैं चुप बैठा हूँ, क्योंकि ये सीमेंट वालों से मैं बहुत नाराज हूँ। ये ब्लैक मार्केट कार्टेल करके करते रहते हैं, तो मैंने उनको समझाया पर वो सुनते नहीं है, तो अभी उन्हीं का नुकसान होगा। अब मैं 1 लाख करोड़ का सीमेंट उनको साल भर में लेने की गारंटी दे रहा हूँ, इसका नहीं होगा तो बिटुमेन वालों का फायदा होगा। अब मैं उनकी ये जो कार्टेल करने वाली नीति है उसके साथ, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फाइन किया है, फिर भी वो सुधरते नहीं है, तो उनके परिणाम वो भुगत रहे, उसका फायदा आपको मिला। अदरवाइज अभी 1.5-2 साल पहले ही मैं तो कंक्रीट रोड मैंडेटरी कर रहा था, पर बीच के टाइम में आप क्यों नहीं कंक्रीट के बराबर ऐसे कोई रोड डिजाइनिंग बनाओ और उनके टक्कर में उनसे उनकी अच्छी क्वालिटी, क्योंकि सीमेंट का एक डिस्क्वालिफिकेशन है कि उसमें रोड राइडिंग क्वालिटी में वो इतना ये हार्ड है कि उसमें मज़ा नहीं आती। ये जर्मनी में जो एटोवांस रोड बने हुए हैं, तो वो क्या हुआ है कि उसमें ग्रिप होती है, क्योंकि बिटुमेन के कारण उसको एक शॉक ऑब्जर्वर जैसा इफेक्ट मिलता है, तो उससे फायदा होता है। तो कंक्रीट रोड विथ बिटुमेन सरफेसिंग या बिटुमेन रोड विथ 10 ईयर डिफेक्ट लायबिलिटी गारंटी, ये अगर 2 बातों में करके आपने डिज़ाइन करके लाए, और अगर प्रिफरेबली उसमें आपने जियो फैब्रिक्स में जूट और कॉयर को फैब्रिक्स को यूज़ किया, तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए भी बड़ा रोजगार मिलेगा। वो भी मैं अभी करने जा रहा हूँ, IIT का एक उसके भी रिपोर्ट आया हुआ है। सब मिलाकर आप 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड का क्वालिटी प्रपोजल लेकर मेरे पास आइए, मैं आपको निश्चित रूप से इसमें मदद करूंगा, सहयोग करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। माननीय मंत्री जी, आपने श्री डॉक्टर विजय जोशी का जिक्र किया था, आपने याद किया था, वो एक्चुअली सिडनी से आपके पूरा सुन रहे हैं और उन्होंने धन्यवाद भेजा आपको कि आपने उनका जो आइडिया था उसको एक दफे से रिकॉल किया था। तो अब मैं निमंत्रण करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट मिस्टर साजिश पाठक, को-चेयर फिक्की ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर L&D इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, टू प्लीज डिलीवर द word of thanks and concluding remarks. Saresh ji, over to you. Honorable Minister Nitinji Gadkari, Dr. Sangeeta Reddy, BVN Rao Garu, and Dilip Chinoy ji. We have spent the last few minutes entranced by what innovation and technology the minister has suggested to us. And this is an opportunity for the construction industry in India. It is also a challenge. ये चुनौती भी है, अवसर भी है, मौका भी है हमारे लिए कि हम अगले कुछ साल में क्या अच्छा बदलाव कर सकते हैं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, हम कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं और क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। और इस सिलसिले में मैं बस ये जिक्र करना चाहूंगा कि 1956 में प्रेसिडेंट आइजनहावर ने अमेरिका में इंटर स्टेट्स का काम शुरू किया था, इंटर स्टेट हाईवेज का, और अगले 10 साल में उन्होंने बना दिया 90% ऑफ द इंटर स्टेट्स इन अमेरिका